गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम चंदन कुमार सिंह है। आज मैं क्लास 9th के लेसन नंबर 4 जो कि नंबर सिस्टम है उसके बारे में आपको जानकारी देने आया हूँ, बताने आया हूँ। इससे पहले की वीडियोस में आपने बहुत सारी चीज़ें, नेटवर्क, कम्युनिकेशन, एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की वीडियोस भी मैंने डाले हैं, उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और जो चीज़ समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज लेसन नंबर 4 नंबर सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। ठीक है, चूंकि ये इंग्लिश मीडियम का वीडियो है तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। एज यू ऑल नो दैट नंबर सिस्टम इज अ टाइप ऑफ दैट बेस्ड ऑन नंबर एंड इट कैन already fulfill the numbers that are given to work into the computer, and the basic number system that was worked by the user are known as decimal number system, because decimal number system carries 0 to 9 numbers. It means total number are 10. So we can say that decimal number is a universal number system that was used by any type of user. Okay, so in computer system there are various type of number system that was given by on your blackboard. First one is binary number system. What is binary number system? As you all know, computer takes only several binary numbers as input, and these are known as 0 and 1. It means this 0 and 1 are called binary number. Okay, because 0 and 1 there are only two numbers. The base of binary number is 2. Okay, the base of binary number is 2 because the given number are the given number in the binary number system are known as 0 and 1. Okay, okay, then here we come decimal number system. Decimal number system carries 0 to 9 numbers. Okay, 0 to 9 number, it means 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. These numbers are known as decimal number system, and decimal number system total carry number is 10. So we can say that the base of the given decimal number are just 10. Okay, okay. Now octal number system. Octal number system carries 0 to 7 number. Okay, it means 0 1 2 3 4 5 6 7. It means total number is 8. So the base of the octal number system is known as 8. Okay, now last one is hexadecimal number. Hexadecimal number carries 0 to 15 number. It means 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Total number is 0 to 15. But here is a condition. What condition? As you see that 1 and 0 means 10, and here it is also given 1 and 0. So many users had confused that what can we do for these things. Okay, now listen to me very carefully. 10, the given number is 10, are also known as capital A. Okay, 11 is known as B, capital B, 12 is C, 13 D, 14 E, and 15 is known as F. Okay, so here you can see that the given number that are verified by the 10, 11, 12, 13 and 14 and 15, these are known as capital A, B, C, D, E and F. Okay, whenever you see these type of alphabet, you can say that these numbers are known as 10, 11, 12, 13, 14, 15, and hexadecimal base is 16 because hexadecimal carries total 16 numbers 0 to 15. Okay, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर में टोटल जो नंबर सिस्टम होते हैं वो 4 नंबर सिस्टम होते हैं, और इन 4 नंबर सिस्टम में सबसे जो यूजफुल होते हैं वो 4 के चारों होते हैं। हमें करना ये है नंबर सिस्टम में कि ये जो चारों नंबर सिस्टम हैं, इन नंबर सिस्टम को आपस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जब कन्वर्ट करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे कि बाइनरी को हमें डेसिमल में, बाइनरी को ऑक्टल में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, वी कैन कन्वर्ट इट and we got some answers. That answer are known as the conversion of the given number. Okay, so now here we can say that each and every number system are converted in each other,
and here is the process that I can see. Okay, so number one, binary to decimal conversion. Okay, binary to conversion. Okay, number one, binary to decimal number. Okay, so as you can see that if we want to change the binary number into decimal number system, we have to do this just one thing. As you all know about the place value, it means the value are given in the number system just 4, 5, 7, 2. The value of 7 is known as tens. The value of 7 is known as 10. Okay, number 5 are known as 100. 4 is known as 1000. Okay, so these are the things that we have to written in this type of question. We have to follow the rule of place value. Okay, place value, as you all know, just these type of thing are known as place value. Just like if a given number is this 4572, 4572, the given value of 7 is known as 70. It means 7 tens. Okay, the given number of 5 is known as 500. The given number is 4 is known as 4000. Okay, so these type of things are known as place value. Okay, so here we can solve the question among the help of place value. Okay, just the number is 1011. Okay, the question is given like this: what is the value in decimal of these binary numbers? Okay, तो बाइनरी नंबर्स की हमें वैल्यू निकालनी है और हमें वैल्यू निकालनी है, उसे दिखाना है डेसिमल नंबर सिस्टम में. तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम उसे कैसे निकालेंगे ये आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले हमें एक वैल्यू निकालनी होगी जिसे हम लोग जो है पावर कहते हैं, पावर कहेंगे हम उसे. तो पावर निकालने के लिए जो गिवन नंबर होता है उस गिवन नंबर्स में से हम 1 माइनस कर देते हैं. जैसे मान लीजिए अगर गिवन नंबर पहला नंबर है तो उसे हम लोग कहते हैं वंस. तो वंस में टोटल कितने नंबर होते हैं? 1. तो 1 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0. तो ये जो है इस पहले नंबर का पावर बन जाएगा. पावर कहाँ लिखते हैं? हमेशा ऊपर लिखते हैं. ठीक है, तो पावर निकालने का फॉर्मूला यही है, पावर इक्वल टू n-1. जो गिवन नंबर रहेगा उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो वही हमारा क्या बन जाएगा? पावर बन जाएगा. अब जैसे हम सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर में जो n है उसमें टोटल नंबर होते हैं 2, बिकॉज टेंस में कितने नंबर होते हैं? 2 नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो 2 में हम लोग जब 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 1. ठीक है, तो 1 जो टेंस रहेगा उसका पावर कितना होगा? हमेशा 1 होगा. ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम लोग n की वैल्यू में 100 रखते हैं तो 100 में टोटल कितने नंबर होते हैं? 3 नंबर्स होते हैं. 3 में से हम 1 माइनस करेंगे तो कितना आंसर में मिलेगा? 2 मिलेगा. तो थर्ड नंबर की जो पावर होती है वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी. ओके, इसी तरीके से 1000 की अगर हम बात करेंगे तो 1000 में टोटल कितने नंबर होते हैं? 4 नंबर होते हैं. 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा. इसकी जो लास्ट वाले की वैल्यू होगी 3 आएगी. इसी तरीके से हम सो ऑन करते चले जाएंगे. ठीक है, अब हमें करना ये है कि जो गिवन नंबर रहेगा उसकी हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं. प्लेस वैल्यू आप सभी लोग निकालना जानते होंगे, इससे पहले आपने मैथमेटिक्स में ये किया होगा. ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो नंबर है उस नंबर को सबसे पहले लिख दीजिए. ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए और मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद यहाँ लिखेंगे 2. अभी आप पूछेंगे 2 कहाँ से आया? 2 हम बताएंगे जो बाइनरी का बेस है, जो गिवन नंबर का बेस है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे. और बेस मतलब मैंने इससे पहले जो एक चार्ट बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था. ठीक है, तो यहाँ पे 2 हम करेंगे क्योंकि 2 बाइनरी नंबर का बेस होता है, क्योंकि उसमें नंबर टोटल कितने होते हैं? 2 होते हैं, 0 एंड 1. ठीक है, अब ये जो बेस है इसके ठीक ऊपर जो हमने अभी पावर निकाला है यहाँ से, उस पावर को हम लिख देंगे ठीक ऊपर. ठीक है,
अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 इंटू, अगर किसी भी वैल्यू का, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो उसका जो है गिवन नंबर होता है 1, उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम अगला नंबर लिख लेंगे, फिर वही बेस, हम जो गिवन बेस है उसको ले लेंगे और इसका ठीक ऊपर वाला पावर ले लेंगे। पावर कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 दिया हुआ है। अब आप करेंगे 1 इंटू 2 का पावर 1 मीन्स 2 इंटू 1। ओके, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला नंबर लेंगे, यहाँ है 0 इंटू 2 का पावर कितना दिया है 2 दिया है, यहाँ 2 लिख लेंगे। तो 0 इंटू 2 का पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब 0 में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है 0 आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला नंबर हम ले लेंगे 1 इंटू 2 का पावर 3 इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये होता है 2 का पावर 3 का मतलब। ओके, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पे लिख लेंगे हम 8। अब इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो जो गिवन वैल्यूज यहाँ पे जो गिवन हमारे पास जो है नंबर्स आए हुए हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। 8 प्लस 2 प्लस 1 टोटल कितने हो गए 11, यही आपका आंसर है। लेकिन अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। आंसर कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोग ऐसे लिखना पड़ेगा 1011 बेस 2 इक्वल टू 11 बेस 10। ठीक है, 11 बेस 10, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट टेल मी इनटू द कमेंट बॉक्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अगला जो इसी तरीके से और भी कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा इसी वीडियो में। तो अगला जो हम लोग करेंगे वो हम करेंगे, ये हमने किया बाइनरी से डेसिमल, अब हम करेंगे डेसिमल से बाइनरी नंबर में कन्वर्जन। ठीक है, तो डेसिमल में बाइनरी नंबर में कन्वर्जन हम करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पहले नंबर 2 डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन किया हुआ था हम उसी को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास आंसर अभी 11 आया हुआ था, उसे हमें 10 में मान लीजिए दिया हुआ है, डेसिमल में दिया है, हमें उसे कन्वर्ट करना है 2 में। ठीक है, 10 मतलब डेसिमल, चूंकि डेसिमल में कितने नंबर्स होते हैं 0 to 9 नंबर होते हैं, टोटल 10 होते हैं और हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो गिवन नंबर है उसे हम लोग लिख लेंगे और जो आस्किंग जो है कन्वर्जन नंबर है उसके बेस से हम लोग इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करिए, एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो आप देखेंगे 2 5 10, जो बचेगा, जो यहाँ पे रिमाइंडर कैरी होगा वो रिमाइंडर को आप लोग यहाँ सामने उसके लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ 2 5 10 आया, 11 में से 10 माइनस करेंगे, 1 रिमाइंडर कंटिन्यू होगा तो 1 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद 2 से करते चले जाइए, हर बार 2 से ही होगा। ठीक, 2 2 4, 1 रिमाइंडर बचा, 1 यहाँ लिख दीजिए। फिर 2 से कीजिए, 2 1 2, कुछ नहीं बचा तो यहाँ 0 लिख दीजिए और फिर 2 से कीजिए, नहीं जाएगा तो इस 1 को हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, रिमाइंडर में लिख देंगे। हमेशा याद रखिए कि अगर हम लोग डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन जो है कर रहे हैं तो वी हैव टू फॉलो दीज रूल्स। दीज रूल्स मीन्स we have to write bottom to top number, okay, not top to bottom, bottom to top. Okay, it means the bottom number, the below number are known as 1 0 1 0 1 1. These are the number that are the answer of this given question. Okay, it means 11 base 10 is equal to 1011 and the question and the answer is same as previous question. Okay, so the answer is correct. Okay, चलिए एक और इसमें से करके देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उस कंफ्यूजन को हम लोग दूर कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हम लोग we have taken the another number just like 246, यहाँ पे हम लोग 2 कर देंगे
ओके, सबसे पहले इस जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को नीचे लिख लीजिए। ओके, और इसमें एलसीएम निकाल लीजिए। ओके, चलिए लेते हैं, तो करिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। कुछ बचा? नहीं बचा। नहीं बचा तो यहाँ क्या लिख देंगे रिमाइंडर में? 0। ठीक है, क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। फिर 2 से करिए। ओके, जब 2 से करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। ओके, और 2 1 जा 2। ओके, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 61। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे मान लीजिए करते हैं फिर से एक बार। तो यहाँ पे हम जब करेंगे तो यहाँ पे बचेगा, क्या बचेगा? 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। फिर 2 से करिए। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब ये 1 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये 1 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे, क्योंकि 32 जा कितना होता है? 60 होता है। ठीक है, फिर आगे करिए। 2 से डिवाइड करते चले जाइए। 2 से 15 आ जाएगा। 15 करेंगे, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, फिर 2 से करिए। 2 7 जा 14, 14 में यहाँ 1 कैरी हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे। 2 3 जा 6, 1 यहाँ रिमाइंडर बचेगा। फिर 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचेगा। फिर 2 से करिए, नहीं जाएगा, ये 1 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, लिखने का वही पुराना तरीका, वी हैव टू राइट दैट बॉटम टू टॉप। ओके, सो द आंसर इज 2 4 6 बेस 10 इज इक्वल टू 1 1 1 1 0 1 1 0। This is the answer of your given question. Okay, these type of question are coming into the board examination. Okay, so that's all for today. Thank you.